asked Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a caravan from us left, and tell us about them. When will they come? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, they will come on this day at this time. So, and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam told them another sign, that they left, the camel ran away, they left their water there. I drank from that water, and I left it there. Yeah? And when they were looking for their camel, they heard my voice say, your camel is in so and so place. So ask them, if I wasn't there, how did they hear my voice? When they came back, the Quraysh asked, and yes, it was true. They got all the signs, they got everything, but people who have a seal upon their heart, if they're not going to believe, no matter how much you try, how much you preach, you cannot get them to believe. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the tawfiq to implement what we hear. May Allah subhanahu wa ta'ala forgive us, grant us Jannat al-Firdaus in the company of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wa ma alayna illa al-balagh. در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری. یہ میرے جوان عزیزم اللہ رب العزت ان کی عمر دراز فرمائے. Give him a long life for the sake of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and accept him for Islam. And میں کچھ چند باتیں اسی سے ریلیٹڈ جو انہوں نے واقعہ بیان فرمایا اتنا پیارا کہ جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کچہری میں گئے تو میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ محبوب کے لیے کوئی تحفہ لے کے جاتا ہے اور اسپیشلی وہ اپنے علاقے کی سوغات لے کے جاتا ہے, ایسی چیز لے جاتا ہے جو محبوب کے پاس نہ پائی جاتی. اب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے مخلوق, یونیک مخلوق, اللہ کی کچہری ان اللہ علی کل شیء قدیر, کون سی چیز ہے جو اللہ کی کچہری میں نہیں. تو حضور وہ تحفہ لے کے گئے جس تحفے کا عزیزم نے ذکر کیا, التحیات للہ والصلوات والطیبات. یہ عاجزی کا تحفہ تھا, ہمبلنس کا تحفہ تھا. That was the gift in front of Allah subhanahu wa ta'ala, being عبودیہ. حضور نے فرمایا میرے پیارے محبوب بما اشرفک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اب اس کے بدلے میں تمہیں کیا عطا کروں جو تو نے اپنا مجھے تحفہ دیا ہے عاجزی کا. اور اللہ عاجز نہیں ہے, اللہ عاجز, جو عاجز ہو وہ خدا نہیں, خدا قادر ہے, جو عاجز ہو وہ خدا. تو ایسا تحفہ لے کے گئے جو خدا کی کچہری میں موجود ہونا ہی ناممکن ہے, کیونکہ اللہ ان چیزوں سے کیا ہے, پاک ہے. یہ بندے عاجز بندہ ہوتا ہے. تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا تحفہ عاجزی کا پیش کیا تو رب نے پوچھا بما اشرفک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اب میں تجھے کون سا تحفہ دوں. تو حضور نے کیا جواب دیا, بنسبتی الیک بالعبودیہ, اے اللہ مجھے اپنی عبدیت کا جو تحفہ ہے وہ چاہیے. علامہ اقبال کہتا ہے نا, اسی لیے میں بندگی دے کر نہ لوں خود شان خدا بندی, کیونکہ جو بندگی میں لطف ہے, عاجزی میں لطف ہے, وہ آکڑ میں نہیں ہے. آکڑ اللہ کو پسند ہے, یہ اسی کی چادر ہے, اسی کو ہی زیبا ہے کہ وہ اس کو تنے. الکبر ردائی, فرمایا یہ چادر جو تکبر کی ہے یہ میری ہے. اب اگر کوئی بندہ عاجز ہو کر تکبر کرے گا تو مجھے وہ پسند. لا تمشی فی الارض مرحا, میری زمین پر آکڑ آکڑ کے نہ چل, تیرے چلنے سے لن تخرق الارض, میری زمین نہ پھٹے گی, ولن تبلغ الجبال طولا, اور نہ تیرا قد کوئی پہاڑ جتنا لمبا ہو جائے گا. اگر تو 6 فٹ ہے 6 فٹ ہی رہے گا, 5 ہے 5 ہی رہے گا. تیرے آکڑ کے چلنے سے تیرا نہ قد بڑا ہوگا نہ چھوٹا ہوگا. اگر تو فیٹ ہے تو نہ تھن ہوگا. اگر جم میں جانا شروع کر دے سوری فور دیٹ, نہیں آدمی یہ کہہ سکتے ہیں میں جی چھوٹا بڑا تو چلو نہیں ہو سکتا, پتلا تو ہو سکتا ہوں, دیٹس ڈفرنٹ اسٹوری. لیکن مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کچھ خصوصیات اور کچھ صفات اپنے ساتھ خاص رکھی ہے. اس لیے جو بندہ ہو کر تکبر کرتا ہے اللہ کو وہ پسند. اللہ اس لعنت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. بندے ہوئے نا. اب میں بلا تاخیر, چونکہ ہمارے پاس 2 نعت خوان رہ گئے, حضرت بھی, اور انشاءاللہ انف ٹائم میں ڈونٹ وری اباؤٹ. تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ کون سی چیز, یہ وہ تحفہ تھا جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازوں کی صورت میں اللہ رب العزت نے عطا فرمایا تھا. جی ہاں قادری صاحب ویلکم. جو 50 نمازوں سے
5 नमाजें हमें नसीब हुई और हर नेकी के बदले मिनिमम रेट नेकी का क्या है 10, तो 1 नमाज के बदले 10 नमाजों का सवाब, पढ़ोगे 5 अजर मिलेगा 50 का। ये सदका है मुस्तफ़ा के कदमों का, ये सदका है रहमत मुस्तफ़ा का। तो मैं दुआ करता हूँ कि आज की रात में अल्लाह ताला हमें नमाज में सुस्ती से बचाए। ये ना पढ़ना एक कुफ्र है, नमाज ना पढ़ना जानबूझकर क्या है, कुफ्र है। माजरत के साथ नमाज में सुस्ती करना ये निफाक की इलामत है, मुनाफकत और हिपोक्रेसी का साइन है। If somebody become careless in performing the salah, it is the sign of hypocrisy. But if someone with intentionally leave the namaz, that is the sign of kufr. Allah Ta'ala उस वक़्त से बचाए कि हम कहीं कुफर में न चले जाएं। अल्लाह ताला उन कामों से महफूज फरमाए। तो मैं बिला ताखीर रिक्वेस्ट करूंगा जनाब मोहम्मद आरिफ चुगताई साहब से कि वक्त की चुके हमारे दूसरे काजी साहब भी आ गए, तो अब जी जी मोहम्मद आरिफ कुरैशी का बच्चा, सॉरी अच्छा मन कर जा सर, सॉरी फॉर दैट सर। अस्सलाम वालेकुम। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले सल्ले अला करीमिना सल्ले अला मुहम्मदिन। या नबी सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या नबी सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। एक ख्वाब सुनावा, एक ख्वाब सुनावा, एक ख्वाब सुनावा, एक ख्वाब सुनावा, पुर नूर फजावा, आका दा मुअल्ला जिवें अर्श मुअल्ला। कदी आन फरिश्ते कदी जान फरिश्ते साडे अज़लों जुड़ गए आका नाल रिश्ते। ओ करमा वाला वेरा पलकां नाल चुमदा जावा, एक ख्वाब सुनावा, एक ख्वाब सुनावा, एक ख्वाब सुनावा, एक ख्वाब सुनावा। रब ले गया मैनू जदू शहर मदीने, एक आजी लाया मैनू कुट के सीने। कदी पीवा ज़मज़म कदी पढ़ा नमाज़ा, मेरी पहुंच जिथों तक मैं दीवाने आज़ा। रब सोने पल विच सुनियो मेरे दिल दियां सब दुआवां। एक ख्वाब सुनावा, एक ख्वाब सुनावा, एक ख्वाब सुनावा, एक ख्वाब सुनावा। आका दा वेड़ा
گزارا اتھے عمر میں ساری کعبے دے چکر میں لے پج پج کے میں اجر اسود چمیا رج رج کے میرے سر تے رب نے کیتیاں رحمت دیاں ٹھنڈیاں چھاواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں او سونیاں گلیاں وچ رحمت رب دی میرا آقا سونا گل سندا سب دی میرے رمل دی چادر اتے داغ ہزاراں کس مانتے واجا تیرے کرم نو مارا کیڑے منہ نال بخشش منگا کیڑے منہ نال بخشش منگا مینوں آندیاں بہت یاواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں آخری شعر ہے چپ کر کے بہ گیا روزے دے نیڑے ہویا نور دا چانن میرے دل دے ویڑے پھر سپنا ٹوٹیا او کچی کلی میں رو پیا صادق میری اکھ کیوں کھلی پھر آقا ستیا درتے ہویاں دل دیاں پوریاں چاواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. I want to give you 2-3 points. That Miraj was physical Miraj. Our beloved Prophet, peace be upon him, went to Allah subhanahu wa ta'ala with his physical body and spirit. Where we get this meanings, हमने ये कहाँ से अखज़ किया, कैसे हमें पता चला? पहली बात ये है कि अल्लाह पाक ने इस वाक़े को सुबहान से शुरू किया. किससे? सुबहान ये अफ़आल तअज्जुब है. ये क्या है? अफ़आल तअज्जुब. जब आदमी किसी हैरान कुन चीज़ को देखे, when you are seeing or watching the wonderful or amazing or astonishing things, you say Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala ये वाक़या खुद अपनी ज़बान कुदरत से सुबहान के लफ्ज़ से दिया. इसका मतलब ये है कि अगर ख्वाब होता तो फिर इतने ताज्जुब की कोई ज़रूरत नहीं थी. ख्वाब में तो हम रात को पता नहीं कहाँ कहाँ फिराते, कश्मीर की वादियों से फिर कर सुबह आके नमाज में शामिल हो जाते, कब्रिस्तानों से फिरते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से फिर के हमारी रूह आ जाती है. और ये एक्सेप्टेबल है. ख्वाब में तो कोई तज़ब्ज़ब और ना ही कोई ताज्जुब है. ताज्जुब उस चीज़ पे होता है कि जो नामुमकिन नज़र आए और उसको मुमकिन बना दिया जाए. When you see something which is impossible and make it possible, and who make it possible? Allah subhanahu wa ta'ala. If we believe about His glorifying, His exaltedness, He is exalted, He is glorified. Glorify to Allah subhanahu wa ta'ala. Number one. दूसरा है अस्रा बिअब्दिही. There are two words. एक है ट्रैवल करना, सफर. एक होता है सैर करना. एक क्या होता है? सैर करना और सफर करने में जमीन आसमान का फर्क है. बाय द वे, मेरी आदत है, हम जब जहाज पर बैठते हैं तो क्या होता है कि जो ही आदमी जहाज सीधा होता है तो हमें आंख लग जाती है. चार घंटे मतलब बेहोश होकर सोता जाना, और हमें कोई पता नहीं होता सोते हुए कि किन किन मुल्कों से जहाज गुजर रहा है, कितनी ऊंचाई पर है, कितनी स्पीड में है, हमें कोई पता नहीं होता.
क्योंकि हम सफर में, हम किस में हैं? सफर में। सफर और है और विजिट और है। जब कोई किसी चीज का विजिट करता है तो विजिट में क्या होता है कि वो आंखें खोल के बहोशो हवास होता है। असरा युसरी इसरान, सैर कराना, सैर करना नहीं है। करने में तो हुजूर खुद दावा करते ना कि मैंने सैर की, तो फिर हो सकता है कोई आदमी इतराज भी कर सकता था, लेकिन हुजूर ने खुद ऐलान नहीं किया। अल्लाह ने ऐलान फरमाया कि हमने सैर करवाई अपने महबूब को। इसलिए अगर किसी का कोई इतराज है तो वो हम पर करे। अगर किसी की खोपड़ी में नहीं आता ये वाकया तो वो हमारी सुभान कुदरत को देखे कि हम इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकते हैं। अगर हम चाहें तो सुई के नक्के से हाथी को गुजारना चाहे तो गुजार सकते हैं। हमारे लिए कोई नामुमकिन नहीं। इसलिए ये एक तो सैर था ना कि सफर था। और सैर भी किसने कराई? अल्लाह ने। तो फिर बेअब्दी, तीसरा कौन सा वर्ड है? बेअब्दी, अपने खास बंदे को। एक है आम बंदा, हम इबादुन, फरिश्ते भी इबादुन मुकरमून, लेकिन हजूर अब्दुहू है। अब्दुहू व रसूलुहू। अब्दुहू, अब्द दीगर, अब्दुहू चीजें दीगर। अल्लामा इकबाल, सुभान अल्लाह। अब्द दीगर, अब्दुहू चीजें दीगर। ई सरापा इंतजार, वो मुंतजर। अब्द वो होता है जो खुदा का इंतजार करता है। अब्दुहू वो है जिसका रब इंतजार करता है। करीम वो है जो रब का कलाम सुनने के लिए 40 दिन रोजे रखकर, शब्बेदारी करके, रोजे रखकर अपने आप को इस काबिल बनाकर फिर तूर पहाड़ी पे आवाज सुनने के लिए तरसता है। और मेरा मुस्तफा जिब्राइल अमीन आकर कदमों को बोसा देकर जगाते हैं, जगा के इनविटेशन देते हैं। क्या शान है मेरे नबी की। सुनिया तेरा रब तेनू बुला रहे हैं, तेरा महबूब तेनू रब तेनू दावत दे रहा, इनविटेशन। क्योंकि तू बहुत परेशान है, तेरी बीवी तय तू जुदा हो गई, तेरा चाचा तय तू जुदा हो गया, तेन बहुत दुख है। असा तेनू विजिट कराना चाहने, तेरा दुख मिटाना चाहने, तेनू हकुल यकीन दिखाना चाहने, तेन वो दिखाना चाहने जेड़ा तेरी आंख ने कदी नहीं देखा। सुनिया, लेकिन एक गल याद रखा है, कोई शे लैनी होवे, मतलब असा कोई मोबाइल यूज करना हो तो पहले चार्ज कर दे। सॉरी, हमने, आप साहब मुझे लुक में दे रहे उर्दू में, यानी हमने जब कोई चीज सेव करनी हो तो हम उसको क्या करते हैं? चार्ज करते हैं। पहले उसकी पेट में जगह बनाते हैं पहले कि उसको वो रिसीव कर सके। मेरे मुस्तफा का शक के सदर हुआ, उन चीजों को निकाल दिया गया जो एक आम आदमी के अंदर होती हैं, और उसमें नूरानी ईमान और हिकमत, विजडम एंड फेथ के समुंदर उंडेल दिए गए और तैयार किया गया उस सफर के लिए। और फिर दूल्हा बनाया गया मेरे मुस्तफा को। दूल्हा बनाकर बुराक पेश किया गया, स्पेशल राइड पेश की गई, जो 1 माह की मुसाफत उसने रात के थोड़े से हिस्से में हासिल कर ली। उस वक्त कितनी मुसाफत थी? फॉर 1 मंथ फ्रॉम मक्का टू यरूशलेम। 1 month going, 1 month coming, 2 months। और मेरे मुस्तफा गए और आए। कुंडी हिल रही थी, बिस्तरा गर्म था। अभी वहां तक नहीं, ये तो छोटा सा सफर था, ये तो जमीनी सफर था। आसमानी सफर तो आगे हुआ, ये तो बशरियत का सफर था। फिर मलाकुती सफर शुरू हुआ जो सिदरतुल मुंतहा तक गया। जब मलाकुत का बादशाह ठहर गया, फिर आगे हकी सफर शुरू हुआ। फिर रब जाने मुस्तफा को क्या मिला, लेने वाला जाने देने वाला। इतना हमें पता चला, फऔहा इला अब्दिही मा औहा, अल्लाह ने वही की अपने बंदे को, इला अब्दिही, सुभान अल्लाह। इधर भी अब्दिही, फऔहा इला अब्दिही। अब्द किसको कहते हैं? बंदे को, जिसका जिस्म और रूह मिलता है तो उसको अब्द कहते हैं। रूह को अब्द नहीं कहते, और बगैर रूह के जिस्म की खाली डेड बॉडी को भी अब्द नहीं कहते। ये जब दोनों कॉम्बिनेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? अब्द। अल्लाह ने महबूब को फिजिकल वजूद के साथ, उन्हीं कपड़ों के साथ, नालैने पाक के साथ, अपने इज्जत व एहतराम और वकार के साथ
सारी मंजिलें तय कराई। अब तो हूँ अपने महबूब को, चूंकि मेरा नबी हबीबुल्लाह है, क्या है? जिसको खुदा चाहता है। हबीब क्यों होता है? जिसको, और कलीम वो है जो खुदा को चाहता है। ये यानी फर्क है, लेकिन हर एक अपना मकाम है। अल्लाह ताला ने 2 दफा कलाम किया है मूसा अलैहिस्सलाम से, और मेरे नबी को अल्लाह ने अपना दीदार 33 टाइम ख्वाब में कराया, और ये रात जो है फिजिकल दीदार कराया। और फिजिकल दीदार में कितनी चीजें मिली? ओहा इला अब्दिही मा ओहा, अल्लाह ने बातें की, वही की अपने महबूब से, जो भी की। तुम्हें क्या, तुम कौन होते हो? कौन सी वही? सुभान अल्लाह। जो हमें नजर आती है वो 5 नमाजें हैं। सुभान अल्लाह। हमें वो वही नजर क्या आती है? और 5 नमाजें जो नहीं पढ़ता वो अपने ईमान का फिक्र करे। जो सुस्ती करता है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। खुदा ताला उन लोगों में से हमें न करे, चाहे कुछ भी हालात हो। नमाज में अल्लाह ताला सुस्ती से हमें महफूज रखा। तो मेरे नबी का ये जो था, और एक और आखिरी बात कर, इससे भी साबित हुआ कि हजूर ने क्या किया? फिजिकल मेराज था। आगे फिर हजूर ने जब सुबह ऐलान किया तो लोगों में तजब्जब शुरू हो गया, बातें शुरू हो गई, एक दूसरे को बताना शुरू हो गया। जिब्राइल का अपना अबू जहल कमला हो गया, पागल हो गया, वो इधर भागने लगा, उधर भागने लगा, सीधा दौड़ के हजरत सईदना अबू बकर सिद्दीक के पास गया। किसके पास? हजरत सईदना अबू बकर ने सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। और पता क्या कहने लगा? तेरा यार कहता है, तेरा। अबू जहल को भी यकीन था कि सैयदना सिद्दीक अकबर किसका यार है? अगर कोई उम्मती होकर सैयदना सिद्दीक अकबर को मुस्तफा का यार न माने तो बदबख्त होगा। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर को कहता है तेरा यार कहता है। मैं इतने रात के अरसे में मैं यरूशलेम गया, फिर मैं पहले आसमान पे गया, दूसरे पे गया, तीसरे पे गया, चौथे पे गया, 5वें पे गया, 6ठे पे गया, 7वें पे गया, सिदरतुल मुंतहा से गया, फिर उससे आगे चला गया, जिब्राइल अमीन भी ठहर गए, और मैं सारी ज़ियारत करके जन्नत और दोज़ख को देखकर और वापस आया तो अभी कुंडी भी हिल रही थी और बिस्तरा भी। रहमतुल्लिल में ये लिखा है मुफस्सिरीन ने कि मेरा मुस्तफ़ा पूरी कायनात की रूह है। पूरी कायनात की क्या है? हजूर जब गए तो समझो रूह निकल गई जमीन से। अब जमीन कितने साल सोए रहे कोई नोबडी नोस। अल्लाह ने सुला दिया पूरी कायनात को मुस्तफ़ा के लिए। सारी नब्ज़े हस्ती बंद हो गई, ये धरती वही ठहर गई। जब हुजूर पलटे तो हर चीज हिलने लगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, नारे तहकीक। पता है क्या हुआ? मुशरिकीन अजब तजब्बुब का, दे वर सस्पिशन का शिकार हो गए। दे वर सफरिंग इन सस्पेशन। दे वर से हाउ इट कुड बी पॉसिबल। मेरे सिद्दीक ने क्या जवाब दिया? फरमाया तू ये तो छोटी सी बात बता रहा है अबू जहल, हमने तो मुस्तफा के कहने पे खुदा को माना। हमने तो मुस्तफा के कहने पे वो बातें मानी है जो कोई मानता भी न था। ये तो छोटी सी बात, जो मेरे मुस्तफा ने अगर वाकई फरमाया तो सच सुभान अल्लाह। मुफस्सिरीन ने लिखा कि उस तस्दीक की वजह से सैयदना सिद्दीक को सिद्दीक अकबर का लक़ब मिला। इस वाक़े की तस्दीक की वजह से सैयदना सिद्दीक अकबर बन गए। ये वो शान थी इस वाक़े की। और पता है मुसलमान भी मुतज़ब्ज़ब हो गए थे। कई मुसलमान भी बातें करने लगे, नहीं वो यार ये किस तरह हो सकता है। अबू जहल ने कहा कि अगर मैं लोगों को बुलाऊं तो आप ऐलान कर देंगे? आपने फरमाया कि व्हाई नॉट, बुलाओ जिसको बुलाना, मैं देख के आया हूं। फिर जिस तरह कामरान ने आपको बताया कि वो सारे साइन भी हजूर ने बताए ऑन द वे जो पेश आए। और पता है हुजूर ने जब मक्के से सफर शुरू किया तो पहला स्टॉप पता है कहां था? बताया तो पहला स्टॉप किथे? यसरब। पहला स्टॉप कहां था? सुभान अल्लाह, मदीने में था, खजूरों वाले शहर में था। हजूर से हजरत जिब्राइल से हजूर पूछने लगे कि कौन सी जगह है? फरमाया ये आपकी हिजरत गाह है यार, यहाँ आप तशरीफ लाएंगे। और वो यसरब का माना क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जन्नत? हाउस ऑफ डिजीज।
बीमारियों का गढ़, लेकिन जब मेरे मुस्तफा के तलवे लगे तो गुबारुल मदीना ते शिफाउल जुज़ाम, अब मदीने की गुबार बीमारों की शिफा बन गई। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जान है जहान की, जान है तो जहान है। मुझे साहब माशाअल्लाह, क्या बताऊं यार, हजूर सरवर आलम सल्लम का ये मेराज ये फिजिकल था, तभी रोले बन गए, तभी झगड़े शुरू हो गए, तभी बातें बनने लगी। लेकिन जो अपने थे उन्होंने सर तस्लीम खम कर लिया, और जो गैर थे वो भटक गए। तो मेरा बात करने का मकसद ये है कि आज की रात बरकतों वाली रात है, आज की रात उसकी रहमतों को लूटने वाली रात है, आज की रात सदका मुस्तफ़ा मांगने वाली रात है, आज की रात मेरा मुस्तफ़ा दूल्हा बना, हजूर के उस दूल्हापन को मनाने की रात है, और हजूर के उस दूल्हे के ऊपर जो वेलें पड़ी रब की रहमत की, उन रहमतों को लूटने की रात। सुभान अल्लाह। आज मैं अब बिला ताखीर जनाब हजरत शेख सैयद गुलाम अहमद समदानी, गुलाम मोहम्मद समदानी मद्दजिल उलाली को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो गुफ्तगू करें। नारा तकबीर, अल्लाह अकबर, नारा रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारा हैदरी, या अली। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इमामुल अंबिया'i हबीब किब्रिया अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। फ़क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे निहायत ही जी वक़ार वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, दोस्त और भाइयों, वक़्त की मुनासबत को मद्देनज़र रखते हुए कोशिश करूँगा कि अपने बयान को अपने वक़्त में ख़त्म करूँ। बहुत सारी चीज़ें आपने माशाअल्लाह समाअत फरमाई हैं मुख्तलिफ़ हवाला जात से, लेकिन अजीज़ ये कोशिश करेगा कि इन 20 मिनटों में हम मस्जिद हरम से भी चल पड़ें, मस्जिद अक्सा से भी हो आएँ, आसमानों से होते हुए अर्श इलाही पे भी चले जाएं, और वो जो रब ताला जल्ला शानहू से हम कलाम हुए वो भी नज़ारा करके फिर वापस आ जाएं, और फिर वापस आके दुनिया वालों की बातें सुने तो रब ताला जल्ला शानहू उनकी बातों का जवाब दे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये सारी चीज़ों के लिए कम से कम 1 घंटा दरकार है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ जो मुझे वक़्त दिया गया है कोशिश करूँगा उसी में अपने बयान को मुकम्मल करूँ। लेकिन वो अमेरिका में हमारे खलीफा मोहम्मद रफ़ीक साहब हैं, वो कहते हैं सरकार आप पेपर अपने हाथ में थोड़े रखा करें क्योंकि लोग पेपर देख के डर जाते हैं तो ये सारे बयान होंगे मेरे दोस्तों और भाइयों, आज की रात अजीम रात, और उस मालिक का हम करोड़ हाँ मरतबा शुक्र अदा करते हैं कि उस मालिक ने हमें मौका अता किया आज की इस रात को सेलिब्रेट करने का, इसमें जाकर इबादत करने का, अपने महबूब अलैहिस्सलाम के ज़िक्र खैर और उसको रिवाइज़ करने का, बयान करने का, सुनने सुनाने का। अल्लाह करीम हम सब का मिल बैठना आमीन। मेरे दोस्तों और भाइयों, वाक़या इस तरह हुआ कि जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी
اللہ کریم کے حکم کے مطابق لوگوں کو دعوت دی، دعوت حق دی، اسلام کی دعوت دی، مختلف مواقع کے اوپر، مختلف جگہوں کے اوپر اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ اور جب طائف کے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا، حق کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، تو انہوں نے آپ کی حوصلہ افزائی کرنے کی بجائے آپ کو تکالیف پہنچائیں، اتنی تکالیف پہنچائیں، اتنا زد و خوب کیا کہ آپ کے بدن مبارک سے آپ کا خون مبارک بہہ کے آپ کے نالائن مبارک میں اکٹھا ہو گیا۔ اب رب تعالیٰ جل شانہ مالک و خالق ہے، پوری کائنات کا مالک و خالق ہے، سب کچھ دے